Radhe Radhe Naina ji. Please let me know that I am on the right page. I was having some issues doing this. Namaste, Anil ji. Radhe Radhe. Hello. Great. Hi, Sachin. Good morning. Thank you, Alisha ji. Thank you. फैजन खान जी, राधे राधे. Okay. How's everybody? सबका लॉकडाउन कैसा चल रहा है? गुड मॉर्निंग. हेलो शुभ्रांशु जी. राधे राधे. यश, मोहित, अनिकेत. आई एम ग्रेट. अनुभव. अभिनव जी, हाउ आर यू? सुप्रतिम, हेलो. So many hellos. Namaste from Nepal. Namaste. Hello from Vancouver. Hello. So I think we are connected. We should start. Firstly, I am on a different page, so I would like to introduce myself. I am Jaya Kishori. I am a spiritual orator and a motivational speaker, and I am here to talk about some things, some topics related to COVID-19, this lockdown thing, and post-COVID-19. So and yes, I will answer your questions, Mr. Kapil, but let's start now. And I have 2 topics today, and after those topics we can talk about your questions. I have some questions too. So hello from Nagaland. Hello. So सब की लाइफ अब घर पे है, और इस साल बहुत से हमने प्लानिंग्स की होगी, लेकिन now everything is on stay and everybody is at home. Some people are like, we aren't doing anything, or we don't have to do something. So I think the first topic is adjusting your life during the pandemic situation of COVID-19, because but I think adjusting is a small word, because we were always wanting this time, when we were working. मैं हूँ, चाहे आप है, जब हम काम करते थे, हम सब चाहते थे कि we had this excuse actually. We don't get time, we don't have time, I can read this but I don't have time, I can do this but I don't have time, I like this sport but I don't have time. And now we all have time, and lots of time. So I think we really need to be very careful during this some months, or 2 months have been gone, and 2 महीने में, शायद 2 महीने में हमने यही सोचने में बिता दिया
कि हमें क्या करना है या ये टाइम क्यों है या बाहर जाना है। पहले जब बाहर थे तो घर पे आने का मन करता था, अब जब घर पे हैं तो बाहर जाने का मन कर रहा है। सो आई थिंक दैट्स रियली वियर्ड। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम समय मांगते हैं कुछ अच्छा करने के लिए और जब हमें वो समय मिलता है तो हम उस समय काम क्यों नहीं करते। तो अभी का टाइम आई थिंक इज़ द बेस्ट पीरियड टू एक्चुअली नो व्हाट यू वांट। हम बहुत कंफ्यूज्ड है अपने करियर को लेकर या अपने रिलेशनशिप इश्यूज़ को लेकर या अपने फीलिंग्स को लेकर, और मे बी वी आर हैंडलिंग विद सम वीकनेसेस और सम प्रॉब्लम्स। आई थिंक this is the best time to know the best things about yourself, or to just understand the confusion you're having between your career choices or your relationship issues. I am not from LPU, but I hope I was from LPU, you know. I always wanted a college life, you know, college friends and everything, but I was too busy with my work. So I had to attend my college, like I just went there for exams. So I was saying this is the perfect time to figure out what you don't know, and we always wanted this time, you know. अगर हम खुद से पूछेंगे तो हम पहले हमेशा यही समय चाहते थे कि हमारे पास समय नहीं है सोचने के लिए, कुछ समझने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए, and I think we have a lot of time right now. So this is the perfect time to open the gift of you, you know. We all are special. हम भगवान के तोहफे हैं, भगवान की बनाई हुई चीज़ है। और इस वक्त I think, you know, everybody is saying that nature is healing, nature is healing, but I think this is the perfect time to heal yourself. You know, इस काम में, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमने कब खुद को खो दिया या उस अपने अंदर के बच्चे को खो दिया। आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू ब्रिंग दैट किड आउट, यू नो, मे बी कोई स्पोर्ट के थ्रू या कोई हॉबी के थ्रू। एंड जहाँ तक आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर बीइंग ग्रेटफुल। You know, 2 days back we had this, everybody knows I think because of news channels and all, we had this great cyclone, you know, जिसने बहुत डिस्ट्रक्शन मचाया है, बहुत कुछ हो गया है कोलकाता में, बंगाल में, उड़ीसा में, you know. So 2 days back when it happened around 2 in the noon, everybody was scared, you know. ज़ोर ज़ोर से हवाएं चल रही है और जो हमारी खिड़कियाँ हैं वो इतनी तेज़ आवाज़ कर रही है, यू नो. वी वर रियली स्केर्ड एंड वी वर सिटिंग इन वन रूम, ऑल 4 of us, and you know, I was like, Papa, I am so scared and what's gonna happen, this and that. And then he was saying me कि सिर्फ हवा की आवाज़ से तुम्हें इतना डर लग रहा है. Just imagine the people who are staying on roads, उनके साथ क्या हो रहा है. वो लोग जिनके घर उतने पक्के नहीं हैं वो कैसे रह रहे हैं. एंड यू नो, एट दैट मोमेंट आई अंडरस्टूड कि कितनी व्यर्थ है, कितनी यूजलेस है हमारी शिकायतें भगवान को लेकर कि हमारे लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट. एंड यू नो, व्हेन यू रियली लुक अराउंड, देयर आर लेस ब्लेस्ड पीपल देन यू. तब आपको समझ आता है कि आप कितने ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, कितने ग्रेटफुल हैं. एंड आज के टाइम पे अगर हम सबसे अच्छे शब्दों में कहें तो हम जिंदा हैं. यू नो, देयर आर पीपल हु आर फाइटिंग फॉर लाइफ. देयर आर पीपल जो अपने अपनों को खो चुके हैं. देयर आर पीपल जो अपने अपनों को घर पर छोड़कर हमारे लिए रास्ते में लड़ रहे हैं. शायद डॉक्टर्स है, पुलिस है, एवरीबडी इज़ फाइटिंग, और हम घर पे हैं और आराम से जी रहे हैं. तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बी ग्रेटफुल फॉर योर लाइफ, फॉर योर ब्लेसिंग्स. शायद हम अपने ब्लेसिंग्स को कभी काउंट नहीं करते. हर वक्त हम कंप्लेन्स करते रहते हैं. यू नो, आई हर्ड दिस थिंग, इट वॉज वेरी नाइस कि एक बच्चे को लेकर है कि एक बच्चा रो रहा था
क्योंकि उसे जूते चाहिए थे। कि एक बच्चा किसी और बच्चे को देखकर रो रहा था कि उसे जूते चाहिए, और थोड़ी दूर जाकर वो देखता है कि एक बच्चा उसे देखकर रो रहा है क्योंकि उसके पास पैर नहीं है। तो आई थिंक ये वही टाइम है जब हम ये समझें कि हमारी लाइफ में कितना कुछ है ग्रेटफुल होने के लिए। एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू make your bond with your family, because I think because of this bhagdod wali zindagi, everybody is working and everybody is running for money, for success, for fame, for careers, and I think nobody is actually watching their parents. अगर मैं खुद की बात कहूँ तो आई थिंक कुछ दिनों से मुझे पता लग रहा है कि दे आर ग्रोइंग ओल्ड। इस काम की वजह से कभी ध्यान जाता नहीं है, एवरीबडी सो बिजी विद देयर वर्क, बट आई थिंक वी शुड गिव सम टाइम टू अ फैमिली। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वी हैव टू, एंड द टॉपिक इज एडजस्टिंग योर लाइफ, एंड आई थिंक दिस द बेस्ट वर्ड ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक सिचुएशन इज एडजस्ट, बिकॉज ये ऐसा टाइम है कि हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस है, यू कैन ईदर ब्रेक डाउन और ब्रेक थ्रू। या तो आप टूट सकते हैं और या तो आप बहुत कुछ बड़े होकर निकल सकते हैं, बहुत स्ट्रांग, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो। तो ये सबसे बेस्ट टाइम है आपके लिए कि या तो आप टूट जाइए ये सोच करके पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, और या फिर तो आप भिड़ जाइए। आई थिंक इट्स द बेस्ट टाइम, यू हैव टू ऑप्शंस, इट्स ब्रेक डाउन और ब्रेक थ्रू। नाउ the choice is yours कि आप क्या करना चाहते हैं। Yes, we should always be thankful to God. So I think I have these comments. Thank you, Devashish ji. Rajesh ji, thank you so much. Jessie ji, yes ma'am. So I think this is the best time for us to grow, to be the best version of ourselves. And I think जैसा मेरे पापा ने मुझे कहा कुछ दिन पहले कि we have this time, और अगर जब इससे बाहर निकले, इस लॉकडाउन से बाहर निकले, मे बी आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, 15 days, 20 days, 1 month, 2 months, आई थिंक जब भी बाहर निकले कोई भी एक स्किल ऐसी हो हमारी, चाहे वो, और नॉट नेसेसरली अ स्किल, हो सकता है कि आप एक अच्छे रिलेशन के साथ बाहर निकल रहे हैं, या एक अच्छे स्किल के साथ बाहर निकल रहे हैं, या कुछ ऐसी बातें समझ के बाहर निकल रहे, दैट यू आर मोर स्ट्रॉन्ग। जैसा मैंने कहा, यू हैव टू बी मोर फिटर, स्ट्रॉन्गर, मे बी फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, बट दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। गिफ्ट योर सेल्फ दिस, कि आप इस टाइम को इस तरीके से यूटिलाइज करें, बिकॉज बैठ जाएंगे, 5-6 महीने गुजर जाएंगे, वील बी बैक टू वर्क, दिस इज़ गोना बी हिस्ट्री। हमने बहुत सारी चीज़ें झेली है, हमारे पेरेंट्स ने काफ़ी ऐसी चीज़ें झेली है जो अब वो हमें बताते हैं कि ये हिस्ट्री था या ये ऐसा हुआ था, पर आई थिंक दिस इज़ गोना बी हिस्ट्री फॉर अस। हम शायद अपने बच्चों को ये बात बता रहे होंगे कि हमने ऐसा एक पैंडमिक सिचुएशन हैंडल किया था, वी वर एट होम फॉर 5-6 months एंड वी वर रियली स्केयर्ड व्हाट्स गोना हैपन एंड व्हाट्स नॉट गोना हैपन। बट आई थिंक ये सब जब कुछ टाइम बाद, कुछ साल बाद सोचेंगे तो शायद हमें ऐसा लगेगा कि इतना भी कठिन नहीं था ये समय। तो आई थिंक दैट्स वेरी नेसेसरी कि आज के टाइम पे एडजस्ट इज़ द वर्ड, एंड एडजस्ट भी कैसे, you need to have a routine, a proper routine. It's not that कि घर पे रहना है तो we aren't doing anything and we are lazy and सिर्फ बैठे हैं या सोए हैं या खा रहे हैं। No, actually you need to have a proper routine कि आप क्या कर रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं, ब्रेकफास्ट कब कर रहे हैं, पढ़ कब रहे हैं, कोई भी एक स्पोर्ट कब खेल रहे हैं, या कोई आपकी पसंदीदा हॉबी, और वॉचिंग वेब सीरीज, So you can learn a lot of things by staying at home. तो I think that's the best thing. जिनको भी ऐसा लग रहा है कि इस समय अच्छा नहीं है, अगर आप एक अच्छे पॉजिटिव वे में ले, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू हील योर सेल्फ। हमें बड़ी तकलीफ़ें हुई है,
येस, क्वालिटी टाइम विथ फैमिली, द बेस्ट टाइम टू हैव विथ योर फैमिली इज़ राइट नाउ. आप सब एक साथ हैं. मैंने 2 दिन पहले ही अपने माता पिता से ये कहा था कि कोरोना के साथ साथ ये नेचर जो हमारे साथ कर रहा है, आई थिंक सबने ठान रखी है कि पूरे परिवार को एक करना है, क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ नहीं है, सब एक ही कमरे में एक साथ सो रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं. तो आई थिंक नेचर ने, प्रकृति ने ठान रखा है कि पूरे परिवार को एक साथ रखना है. तो आई थिंक जब सबने ठान रखा है तो हमें भी ये काम करना चाहिए. I am so thankful to God that I'm getting time spent with my family, especially with my grandparents. Exactly, you know, we are so lucky. There are people who want to go home or not able to go home. I think this is the best time if you're with your family. So just spend time with your family. And do you think spirituality is a God? See, spirituality is not necessarily about God. It's about discipline, it's about your emotional well-being. क्योंकि आपको spirituality एक simple life की ओर ले जाता है. Spirituality means like if I'm doing my work properly and my work is my God, I think this is being spiritual. A doctor doing his work properly, saving lives is spiritual. You doing your studies properly and giving the best time, being honest, this is spiritual. So I think everything that's done with discipline, with sincere thoughts and with positivity, purity, I think that's spiritual. So it's not about always being with God or doing malas or doing pujas. You can do that, you should do that, but even if you're not doing that, I think if you're doing your work properly, this is being spiritual. For me it is actually, you know, it's the best time to develop skills staying at home. Yes, Sujit ji. Okay, so I will see some comments now. Ram Ram, thank you. Aniket ji, Patel ji, Navjot ji, correct. Thank you so much. So, where is Lord? In your heart. अपने अंदर ढूंढिए and I think आपको वो मिल ही जाएंगे. So I will just answer 1 or 2 questions and then we'll go to the next topic. How to deal with boredom and stress in this lockdown. जैसा मैंने कहा, first thing is make a routine. रूटीन इज़ वेरी नेसेसरी. बॉर्डम तब होगा जब आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आपको पता नहीं है आपको किस टाइम पे क्या करना है. सो प्लीज़ मेक अ रूटीन. व्हेन आर यू वेकिंग अप एंड व्हेन आर यू हैविंग योर ब्रेकफास्ट और व्हेन आर यू स्टडिंग, व्हेन आर यू टेकिंग अ ब्रेक एक्चुअली, उसका भी आप रूटीन बनाइए. तो मेक अ रूटीन फॉर एवरीथिंग. एंड आई थिंक फॉर लेजीनेस व्हाट आई डू इज़ I exercise or yoga or something like that, because fitness is something that makes you happy. It gives you some kind of different energy when you're working out or doing exercise. So I think you should do this for not being lazy these days. How can we attain true peace? By being honest. When you're honest, you're doing your work properly, you're at peace, you know. मैंने एक बहुत अच्छी एक स्टोरी अपनी कथाओं में कही है. देयर वर 2 फ्रेंड्स, अ बॉय एंड अ गर्ल, यू नो. तो लड़के को उसके माता पिता ने कुछ मार्बल्स दिए, कंचे. हम सब ने बचपन में खेले थे कंचों के साथ. तो उसको कुछ कंचे दिए, बहुत सारे, बहुत सुंदर सुंदर डिफरेंट कलर्स. और जो बच्ची थी उसके माता पिता ने उसे कुछ कैंडीज दी, यू नो. दे गेव हर सम कैंडीज एंड दे वर फ्रेंड्स. सो they met for playing and all, and they both were showing his marbles or she was showing her candies. So the boy said, because he was loving those candies, the boy was like, if you give me your candies, I will give you, if you give me the best candy, I will give you the best marble. तो लड़की ने कहा ठीक है. तो उसने सबसे सुंदर, सबसे बड़ी कैंडी जो थी अपनी, वो उस लड़के को दे दी.
लड़के ने जो सबसे सुंदर मार्बल था उसे तो छुपा लिया, और बाकी एक नॉर्मल सा मार्बल ये कहकर कि दिस इज़ द बिगेस्ट वन एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल ही गेव हर, एंड दोनों घर चले गए. अब उस रात वो लड़की तो बहुत आराम से सोती है, बट द गाय ही वॉज थिंकिंग कि जैसे मैंने अपनी सबसे सुंदर मार्बल को छुपा के रखा था, उसने भी शायद अपनी सबसे टेस्टी कैंडी मुझे दी नहीं, उसने भी छुपा के रखी होगी. तो कहते हैं इसीलिए जब खुद के अंदर चोर होता है तो सबके अंदर चोर नज़र आता है. जब हम खुद ऑनेस्ट नहीं हैं तो हमें वो पीस नहीं मिलता है. तो इट्स रियली नेसेसरी, जब इफ़ यू वांट टू अटेन ट्रू पीस, बी ऑनेस्ट. ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट थिंग टू अटेन पीस. If you're honest with your work, with your relationship, then I think this is the best time. So let's go to the next topic. The next topic is how to cultivate resilience. कि आप इन चीज़ों से कैसे उभरेंगे जब ये ख़त्म हो जाएगा. तो I think we really need to understand today's situation, and then we can, we can think about the ways we can just come out of this situation. So the first thing is, I heard this very pretty lines, very amazing lines, that Paris is no more romantic, Disney is no more magical, kisses and hugs, they are like weapons now. You can't do that, because if you do that, if you're staying too close, it's very scary because of that corona thing. And staying away from your grandparents or parents when you're away or staying somewhere else, then I think this is the biggest care. I think आप अपना केयर, अपना प्यार इसी के ज़रिए बता रहे हैं कि जब आपको डर लग रहा है तो आप घर से बाहर नहीं निकल रहे, या घर से बाहर हैं तो आप जहाँ हैं वहीं रह रहे हैं और अपने माता पिता या अपने बुज़ुर्गों के पास नहीं जा रहे हैं, बिकॉज यू आर स्केर्ड, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है. I think this is the best way to show care these days. And everything around us is so uncertain. Everything. But right now, it's not the time to think about uncertainties, but it's the time to be grateful, to, treasure our memories. अपने इस blessings को हम ध्यान दें. So I think this is the best time, and the biggest lesson I have learned from this pandemic thing, I think, is life is unpredictable. आप नहीं जानते कब क्या हो जाएगा. So I think you have to be acceptable. आपको ये सब चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल. हर चीज़ हमारे मुताबिक नहीं चलती है, पर हमारा बिहेवियर हमारे मुताबिक ज़रूर चलता है. So these work and gym and malls, nobody would have thought कि ये सब एक दिन बंद हो जाएगा कितने महीनों के लिए और कोई बाहर जा नहीं पाएगा. हमने शायद ये चीज़ सोचा था, but I think, this is the best time to learn that life is unpredictable, uncertain, but we are not, our behavior is upon us. हम कैसे बिहेव करते हैं, क्या काम करते हैं, ये सब हम पे डिपेंड करता है. आई हर्ड दिस डायलॉग फ्रॉम अ वेरी गुड मूवी, आई वुड से यू ऑल मस्ट हैव सीन, दैट इज़ दिल धड़कने दो. कि इंसान ही सिर्फ अकेला ऐसा होता है जो अपने आप को किसी भी व्यवहार में ढाल सकता है. वी आर द ओनली पर्सन, ओनली लिविंग बीइंग्स, वी कैन डू एनी थिंग, लाइक इन एनी बिहेवियरल पैटर्न हम उसमें जा सकते हैं. So I think this is the best time to understand your power. Nobody is normal, or nobody is average or mediocre. Everybody is so special. We all have some kind of talent in us. तो ज़रूरी है उस talent को, उस power को, उस strength को अभी समझने का. So please अपने उस पावर को समझिए, and then we can easily, very easily, handle all the situation after this lockdown period too. So I think this is the best time. How can we make balance between studies and families? Routine, I would say, it's very necessary. Obviously, you should have supportive family,
who understands. And I think families are supportive these days if you're studying especially. So every parent wants you to study. कि जितना पढ़े उतना अच्छा है. And it's so weird, when I was in school, I used to study whole day, and pura din nobody's gonna come in my room and watch what is she doing and what is she not doing. But as soon as I pick my phone up, and my mom comes and is like, oh, din bhar phone use karte hain. So I think the parents are very happy when you're studying. So I think you should have a particular routine. इतना से इतना time तक I have to study, और इतना से इतना time तक I have to revise, and इतना से इतना time तक I have to be with my parents. And I think after this lockdown period, we really need to learn some things, what we are doing right now. Especially one thing, the nature is healing and everybody is loving. I see these posts from Instagram or Facebook, and there's like, I'm hearing this birds chirping around, and I'm seeing this sunset and this and that, and there aren't cars and this and that. So I think you're enjoying these things, but as soon as the lockdown period will get over, everybody will start running again. They'll do these works, and again pollution will happen. So if you're loving this side of nature, I think you should keep it. Second thing is, everybody is loving the time spent with their parents. कि उनको इतना अच्छा लग रहा है कि हम घर पे हैं, हम अपने माता पिता के साथ हैं. Some people are like, ये लॉकडाउन तो चलना चाहिए भाई लंबा टाइम तक. And I'm really enjoying my life. So everybody is loving this bond with their parents. So I think week में एक दिन we should have no social media day and just spend that time with our family. I think this is the most important thing to learn from this pandemic situation. Please, please, please have one day off from social media. Just in a week, just one day off. कि आप 6 दिन आप बहुत काम करिए, आप just roam around, meet your friends and everything. 5 days you're working, you have weekend, Saturday just be with your friends. But if it's Sunday or Saturday, just you can do that day whichever you want, but that's your off the social media mode. कि आप फ़ोन चेक नहीं कर रहे हैं, your phone is actually off. आप फ़ोन चेक नहीं कर रहे, Instagram, Facebook or anything, just don't check it, and just give that time to your parents, to yourself. Just sit with yourself and think about what you're doing. Self-talk is the best thing to do nowadays. You don't need any motivational speaker. I think मैंने हमेशा एक ही बात कही है कि मैं खुद एक motivational speaker हूँ, but nobody can motivate yourself जितना आप खुद अपने आप को कर सकते हैं. लाइक मैं कुछ बातें अगर आपसे आकर कहूँगी, आप कुछ देर सुनेंगे, फिर आप भूल जाएंगे, पर जो आप खुद अपने आप से कहते हैं वो आप कभी नहीं भूलते. और जितना आप खुद अपने बारे में जानते हैं उतना और कोई नहीं जानता, या जितना आप खुद का अच्छा चाहते हैं उतना और कोई नहीं चाहता. तो आई थिंक द बेस्ट मोटिवेटर इज विद इन यू, इट्स यू. So please do that self-talk thing with yourself. So one day off social media, just spend time with yourself and your parents or your grandparents or your loved ones. So I think continue with loving nature. Continue these, being grateful, and continue to being a good human being. I think, अभी हम लोग सब इतने अच्छे हैं, सबको सब कुछ अच्छा लग रहा है, डूइंग सच गुड थिंग्स, एंड वी आर अप्रिशिएटिंग पीपल. नोबडी इज जजिंग एनीबडी, एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग पीपल. सो प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग दिस, बिकॉज हम एक अलग ही दुनिया में आ चुके हैं जहाँ पर जजिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट दीज डेज, ट्रोलिंग इज़ सो ईजी दीज डेज. सो आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम जजमेंट्स और क्रिटिसिज्म के अलावा लोगों से प्यार करना सीखे, उनको अप्रिशिएट करना सीखे, बिकॉज एवरीबडी इज फाइटिंग विद इन देमसेल्व्स. सब अपने अंदर कोई ना कोई एक लड़ाई लड़ रहे हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता. जब तक आप किसी को जानते नहीं हैं, कहा जाता है ना, जब तक आप किसी को जानते नहीं हैं उनके बारे में अपनी राय ना बनाएं. जब तक आप पर्सनली किसी को नहीं जानते, यू नेवर नो कौन कौन सी लड़ाई लड़ रहा है. So I think it's a very good time to understand that instead of passing judgments or criticizing people, please start appreciating people. How to bring positive thoughts when we're not doing good in our lives.
ओके, जैसा मैंने कहा, आई हैव दिस क्वेश्चन टू, सो आई थिंक आई शुड मूव टू सम क्वेश्चंस. So let's start with the questions. First question is, I am a student and during this lockdown we all suffer from stress. How do we handle pressure of exams of our semester? I think this must be a question from LPU only. Okay. So we have some points for this. First is importance of mindset. जैसा मैंने कहा कि हम इंसान ही ऐसे हैं जो अपने आप को किसी भी व्यवहार में ढाल सकते हैं. We can do this, we have this power. So you have to create a mindset if you're really anxious or really tensed about what's going to happen after this post-COVID thing. So I really want people to understand that everyone is on the same boat. Everyone. जितनी तकलीफ आपको एज एन इंडिविजुअल हो रही है, जितना स्ट्रेस हो रहा है, उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रेस शायद आपके पड़ोस में कोई रह रहा है उससे हो रहा होगा. उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रेस शायद जो बहुत गरीब है या जिनके पास आज खाने को भी कुछ नहीं है, उनको कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही होगी. सो इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट एवरीबडी इज सफरिंग. वी आर नॉट द ओनली पर्सन सफरिंग दिस टाइम. जब सब सफ़र कर रहे हैं तो आपको माइंडसेट रेडी करना पड़ेगा कि आई थिंक सम थिंग्स आर नॉट इन आवर हैंड्स. तो आपको जैसा जो फ्लो चल रहा है उसके थ्रू चलना पड़ेगा. स्ट्रेस लेकर कुछ भी नहीं होगा. आई वॉज हैविंग दिस मीटिंग विद LPU स्टूडेंट्स एंड आई जस्ट टोल्ड वन थिंग कि जब आपको पता है, यू नेवर नो ये लॉकडाउन कब तक रहेगा या कोविड ये जो है कब तक रहेगा, ये आपके हाथ में नहीं है. तो जब आपको पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है, तो स्ट्रेस लेकर या टेंशन लेकर या रोकर क्या अच्छा हो जाएगा. पहले ही एक टेंशन है, अगर हम स्ट्रेस लेंगे तो शायद हो सकता है हमारी तबीयत भी ख़राब हो जाए, हमें और ज़्यादा इश्यूज़ होने लगे, हेल्थ इश्यूज़ होने लगे, तो एक दिक्कत पे दूसरी दिक्कत और आ गई. तो आई थिंक इट्स वेरी नेसेसरी टू क्रिएट अ गुड अ पॉजिटिव माइंडसेट. प्रैक्टिकल होके, सब कुछ जान के कि सबको प्रॉब्लम हो रही है और सबको क्या, देश पीछे जा रहा है. कई साल, कितने साल पीछे देश चला जाएगा. इकोनॉमिक इश्यूज़ जो है वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो एवरीबडी सफरिंग. हम और आप अकेले नहीं हैं जो सफ़र कर रहे हैं. सो इट्स नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. कि सिचुएशन कैसी चल रही है, मुझे उसके अकॉर्डिंग क्या करना होगा. सो यू जस्ट हैव टू जॉट डाउन सम पॉइंट्स कि अभी का सिचुएशन कैसा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, राइट इट डाउन. उसके क्या सल्यूशंस हो सकते हैं, कितने ज़्यादा सल्यूशंस, राइट ऑल द सल्यूशन, बेस्ट पॉसिबल सल्यूशंस. एंड उसके बाद जो बेस्ट सल्यूशन होगा, यू कैन डू दैट. सो आई थिंक create a good mindset. Yes ma'am, so true. Second thing is, social distancing does not mean कि आप पूरी तरीके से कमरे में बंद हो गए हैं, आइसोलेट हो चुके हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी से मिल नहीं रहे हैं, या जस्ट आप सो रहे हैं या जस्ट टीवी देख रहे हैं. आई थिंक इट्स वेरी नेसेसरी टू कीप अ कॉन्टैक्ट विथ पीपल. आप अपने जो लव्ड वंस हैं उनसे बात करते रहिए या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, बिकॉज दैट्स गोना कीप द एनर्जी अलाइव इन यू. आप उस चीज़ को ऑन रखेंगे. अगर आप यू जस्ट आइसोलेटिंग योर सेल्फ, दैट्स गोना मेक यू लेजी, दैट्स गोना मेक यू स्ट्रेस्ड आउट, और आपकी एनर्जी धीरे धीरे बहुत नीचे जाती जाएगी. यू गोना एक्सपीरियंस अ रैपिड डिक्लाइन इन योर मूड, इन योर एनर्जी, इन योर पॉजिटिव थॉट्स. सो इट्स वेरी नेसेसरी टू कीप good contact with your loved ones. And जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, मेंटेन अ रूटीन. और रूटीन का मतलब ये नहीं है कि इतना ज़्यादा टाइम है तो वी आर गोइंग हार्श ऑन आवरसेल्व्स, वी आर स्टडिंग 24 hours, बिकॉज क्वालिटी ऑफ स्टडिंग इज मच इफेक्टिव देन क्वांटिटी ऑफ स्टडिंग. इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू स्टडी, इट्स अबाउट हाउ वेल यू स्टडी. तो आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं मायने नहीं रखता है, लेकिन आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं ये मायने रखता है. सो इवन इफ यू आर गिविंग जस्ट 2 hours अ डे फॉर योर स्टडिंग, लेकिन उस 2 hours में गिव योर 100%. एग्जैक्टली रुचिका जी, वी हैव टू वर्क ऑन आवर सेल्व्स. जैसा मैंने कहा, इट्स द बेस्ट टाइम टू हील योर सेल्फ. नेचर हील हो रहा है, सब हील हो रहे हैं, बट हम नहीं हो रहे हैं.
हम और स्ट्रेस्ड आउट होते जा रहे हैं कि अब क्या होगा क्या होगा, पर तुम्हारे हाथ में ही नहीं है ना, ये सब सोच के फ़ायदा क्या क्या होगा। तो आई थिंक इट्स वेरी नेसेसरी टू हील योर सेल्फ, अपने बारे में सोचिए और क्या क्या, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू जॉट डाउन योर वीकनेसेस, क्योंकि किसी और को पता हो ना हो, आपको ज़रूर पता है कि आपकी वीकनेस क्या है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमें अच्छे से पता होता है कहाँ हम अच्छे हैं, कहाँ हम बुरे हैं, क्या हमें चीज़ें सुधारनी हैं। बाहर की दुनिया में वी आर लाइक वी आर गुड, वी डोंट डू दैट एंड वी डोंट डू दिस, बट अंदर ही अंदर वी नो कि हम कहाँ कहाँ गलत है, कहाँ कहाँ सही है, किस किस चीज़ों को हमें सुधारना है। तो प्लीज़ जॉट डाउन दोज पॉइंट्स, योर वीकनेसेस, एंड देन आई थिंक you're gonna come out more stronger when this lockdown period is over, and आपको खुद को अच्छा लगेगा। इट्स वेरी नेसेसरी है। एज अ पर्सन आप इतना तो कर सकते खुद के लिए, किसी और के लिए हम बाद में करेंगे, पहले हम खुद के लिए तो अच्छा कर ले, अपने आप को सुधार ले, अपनी अच्छाइयों को बाहर लेकर आए, अपनी बुराइयों को ख़त्म करे। तो आई थिंक दैट्स वेरी नेसेसरी। हाउ डू यू कीप योर सेल्फ इन सो मच पॉजिटिविटी? इट्स नॉट अबाउट कीपिंग योर सेल्फ, इट्स जस्ट अबाउट बीइंग प्रैक्टिकल। जब आपको पता है आपके हाथ में कुछ नहीं है तो टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है। आई वुड नॉट लाइक कि जब टेंशन है उसके ऊपर मैं टेंशन पे रो भी रही हूँ और अपने सरदर्द को भी लेकर आ रही हूँ, लाइक दो टेंशन एक साथ आ जाएगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक टेंशन है तो एक ही टेंशन पे ध्यान देते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। सल्यूशंस हर चीज़ के, कहते हैं ना, व्हेन देयर इज़ विल देयर इज़ वे। ढूंढने पे भगवान भी मिल जाते हैं, सॉल्यूशंस क्यों नहीं मिलेंगे? सो वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड रेडी टू फेस एवरीथिंग। एग्जैक्टली, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड यू हैव टू फेस एवरीथिंग। ओके, एग्ज़ाम रुकवा दीजिए मैम। देखिए, मैं ये कर सकती तो मैंने अपने एग्ज़ाम्स रुकवा दिए होते। मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं है, बिकॉज आई वुड हैव डन द सेम। Thank you, Chandrabhan ji. So I think this is how a student can, release his stress. Next question is how to handle failures and stay motivated. So first thing is, हम failures को जितना importance देते हैं, I don't think देना चाहिए। और इट्स नॉट अबाउट विनिंग। हम कोई भी गोल अपनाते हैं, आर मेन मोटो इज़ विनिंग। कि जैसे अगर मैंने काम शुरू किया है, पहली बार है चाहे दूसरी बार है, आई डोंट केयर, अगर काम शुरू किया आई हैव टू विन। बट व्हेन यू आर अचीविंग अ गोल, विनिंग इज नॉट योर मोटो। इट्स अबाउट गेटिंग देयर बाय बीइंग मोर स्ट्रोंगर। क्योंकि हमने हमेशा सोच के रखा है गोल्स हम कैसे बनाते हैं, लाइक मे बी इफ़ आई बिकम अ CA आई विल बी हैप्पी, ये आई थिंक सबको पता होगा। और इफ़ आई बाय दिस कार आई विल बी हैप्पी, और इफ़ आई गो देयर आई विल बी हैप्पी, और इफ़ आई मैरी दैट पर्सन आई विल बी हैप्पी। बट नोबडी थिंक्स कि ये जो जर्नी है, आई हैव टू बी हैप्पी, इस जर्नी के बीच भी, क्योंकि अगर आप अपनी हैप्पीनेस उस समय तक ढूंढ रहे हैं कि जब मुझे वो गोल मिलेगा तभी मैं हैप्पी होंगी, तो आई थिंक इस बीच, इस जो आपका स्ट्रेस का पीरियड है या स्ट्रगल का पीरियड है, जिस समय आपको फेलियर्स भी देखने पड़ सकते हैं, रिजेक्शंस हो सकते हैं, तो आई थिंक उस टाइम में हम इतने स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, हमारे टेम्पर इश्यूज़ होने लगते हैं। एग्जैक्टली, गुस्सा कंट्रोल कैसे करें, हमारे टेम्पर इश्यूज़ होने लगते हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, वी आर जस्ट डिसरिस्पेक्टिंग पीपल, एंड उसका हम एक्सक्यूज़ देते हैं कि आई एम स्ट्रगलिंग डूड, आई एम वर्किंग, आई एम टू बिजी एंड आई एम टू स्ट्रेस्ड। तो आई थिंक जब तक आप अपने गोल तक पहुंचते हैं, आप मेंटली इमोशनली ड्रेन हो चुके होते हैं, एंड फिर वैसा सक्सेस पाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो सक्सेस इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट विनिंग, इट्स अबाउट कितने भी रिजेक्शंस या फेलियर्स आए, बिकॉज इफ़ यू आर ड्रीमिंग ऑफ समथिंग कि दैट्स माई ड्रीम, आई वॉन्ट टू अचीव दैट, यू हैव टू फाइट फॉर दैट। अगर आप लड़ेंगे नहीं, अगर आप गिर कर उठेंगे नहीं, तो आई डोंट थिंक आप उतना अपने ड्रीम से प्यार करते हैं। सो अगर ऐसा है, देन यू हैव टू बी श्योर कि मैं सचमुच ये काम चाहता हूँ कि नहीं, या ये करियर मुझे चाहिए कि नहीं।
Yes, so see, there are many questions. I'm very sorry कि इसके चक्कर में आपकी सफलता की कहानी बताइए. Hard work, consistency. I mean, I just kept doing what I was doing, no matter what. Because it's not that I haven't faced failures or rejections. I have done that, and I was actually facing these things when I was too small, too young. So आप कोई भी समय में हो, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं, then you have to face rejections and failures. Manas, what's your favorite quote? My favorite quote is, your life is your message to the world. Make sure it's inspiring. कि आपकी ज़िंदगी एक मैसेज है उन सभी के लिए, और आई होप कि ये ज़िंदगी एक इंस्पिरेशन हो सबके लिए. सो इट्स नेसेसरी कि आप अपनी ज़िंदगी को इस तरह जिए कि आपके जाने के बाद आपकी लाइफ को एक इंस्पिरेशन मान के लोग चले. सो आई थिंक दैट्स वेरी नेसेसरी. Okay, I have this question. Ma'am, I want to know how to be motivated. I'm very much distracted by my phone and negativity. I used to work very hard, but from last 4 years, I am becoming careless and demotivated. Okay. Okay, so this is a question उनके लिए, जैसे मान लीजिए कभी कभार हम कोई goal achieve करना चाहते हैं and you're working for that, and as soon as we achieve that goal, then we are lazy, we don't want to do anything. So I think the best advice I can give for this is, rather than making a goal and then just working for that goal, you should make a habit. आप if you achieve that goal, you can change your life, but just for that particular moment, आपको आपका जो चाहिए वो मिल गया, you are happy, कुछ time तक you will be very happy. For example, you want a car or something, or just a gift or laptop or phone, you're going to be excited for that gift maybe for 1 month, 2 months, mostly 3-4 months. Then उसके बाद you will be bored, कि हो गया, अब कुछ नया चाहिए, because you were working hard or you were happy just for that thing. It wasn't a habit. So I think the first thing is, आपको एक habit create करनी है. For example, your room is a mess. You have a messy room and you want to clean that room. So you get motivated and it's like, I am going to clean my room today. So you're really motivated. आप 2-3 घंटे अपने कमरे को एकदम अच्छे से साफ करते हैं and you look back and you have a very clean room. But if you don't have a better cleaning habit, 2 महीने बाद आप देखेंगे फिर से आपका रूम गंदा होगा. फिर आपको मोटिवेशन चाहिए होगा कि मैं रूम साफ़ करूं, और फिर आपको सेकेंड टाइम हो सकता है वो मोटिवेशन ना मिले. तो इट्स वेरी नेसेसरी कि रूम क्लीन करने की बजाय आप अपना गोल बनाइए टू हैव बेटर क्लीनिंग हैबिट्स. एंड इफ़ यू हैव अ बेटर क्लीनिंग हैबिट, आई थिंक योर रूम इज़ गोना बी ऑलवेज क्लीन. सो it's very necessary to create a habit. If you want to be a singer, then don't just work for your goal like, I want to sing this song, or I want to be in that film, or just in that industry. Just be a singer. I want to sing. And if you want to sing, that singing is your habit, you're going to sing all the time, even after achieving your goal. Like if you want to be a writer, so don't think that I want to write a book, because after writing a book you're gonna be like, कि book तो हो गया, अब क्या करूँ, मेरा गोल तो book लिखना था. So practice or pay attention on being a writer. तो आई थिंक कि आप अगर एक राइटर है, वो इंसान हर वक्त लिखता रहेगा. वो 1 बुक पे, 2 बुक पे या 3 बुक पे रुकेगा नहीं, क्योंकि वो राइटर है, उसकी हैबिट है, ये उसकी आदत है. So I think if you want to be motivated all the time, you really need to make that your habit. One bhajan, please. Okay. I'm gonna sing that, don't worry. See, I have this bhajan, people like it, and it's my favorite too. Ma'am, we want to hear bhajan, yes.
Okay, so during this bhajan, I always say this, that sometimes भगवान के साथ एक बॉन्ड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. मैं कथा में एक बात कहती हूँ कि योग्यता में वो ताकत नहीं भगवान को पाने के लिए, योग्यता में वो ताकत नहीं जो ताकत अपनेपन में है. सो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप भगवान को अपना माने. सो for that I have this bhajan. It's really favorite, like one of my favorites, I would say. Okay, so okay, I'm singing. हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम. तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम. थैंक यू. राधे राधे. Thank you, Vivek ji. Thank you so much. शौकीन पाल सिंह जी, या मैंने वही भजन अभी जस्ट सुनाया. दैट्स माय फर्स्ट चॉइस भजन. Thank you so much. Okay, then we just have, I think, one more question, and I hope then we're gonna, I think, end this. How to gain confidence when your family is not supporting your decision to follow what we want to do. Okay, आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत जनों का है. घर में जब हम कुछ करना चाहते हैं या कोई करियर चॉइस लेते हैं एंड देन पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिंग. सो आई थिंक फर्स्ट थिंग व्हाट आई से इज डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू सपोर्ट यू, क्योंकि जब तक आप खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं रखते उनको भी आप पर भरोसा नहीं आएगा. एंड सपोर्ट मांगा नहीं जाता, अर्न किया जाता है. यू हैव टू अर्न दैट. उनको कैसे पता चलेगा कि यू आर सीरियस फॉर दिस. सो यू हैव टू वर्क फॉर दैट गोल एंड धीरे धीरे उनको भी भरोसा हो जाएगा कि हाँ ही इज़ वेरी सीरियस अबाउट दिस एंड ही और शी इज़ गोना डू दैट. सो इट्स वेरी नेसेसरी टू जस्ट रिमूव दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अदर्स. इट्स वेरी नेसेसरी टू बी सपोर्टिव अपने आप से. आप अपने आप को सपोर्ट करिए, अपने सपनों को सपोर्ट करिए, उस पर भरोसा रखिए, वर्क फॉर इट एंड देन एवरीबडी इज गोना सपोर्ट यू. सो आई थिंक दैट्स मोर नेसेसरी कि आप खुद को सपोर्ट करें. एंड फैमिली वाइज आई थिंक व्हेन यू आर डूइंग समथिंग which is something they don't want, or your family or your parents don't want, I think they see a certain kind of change in you. They are afraid of losing you, because when you're doing something, when everybody is against that, then you act differently, behave differently, talk differently. So they are really afraid of losing you. So और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उनके पोजीशन पे रहकर भी समझें. So it's necessary कि just do it for yourself, not for your parents, not for the society, not for your relatives. Just do it for yourself, and as soon as you achieve that goal, I think that's gonna bring everybody in your support, and everybody is gonna be like, we know the society. जब आप काम करना चाहते हैं, everybody is gonna like नहीं होगा, और जब आप वो काम कर लेते हैं, and everybody is gonna be like, हमको तो पता ही था, you're so good, you're so hard working. So exactly, we have to believe in ourselves. So everybody is going to support you when you're successful, but the only support you need when you're struggling is just you. जैसा मैंने पहले भी कहा, you're the best power, you're the strongest power. So just be with yourself, trust in yourself, believe in yourself, and you're gonna achieve great heights.
I think we are near to reach golden era. Every time is golden era if you're doing your work nicely, you know. Every time is golden era. Okay, I think we can have questions from your side, I mean, because everybody is saying more time, but you know, आप एक साथ सब कुछ सुन लेंगे, then next time you won't come to listen to me, you know. So I think थोड़ा दो तो ज़्यादा अच्छा लगता है. एक साथ सब कुछ मिल जाएगा, then पेट बहुत ज़्यादा भर जाता है. How should we motivate ourselves to get work done after trying many things and failing over and over again? I think you really need to understand, if you're failing, it means you're doing something wrong. So please try to understand that reason, instead of thinking that, you know, I'm just failing, I'm just being rejected or something like that. Just pay attention to what you're doing wrong, because that's very necessary. Because एक ना एक गलती तो होती है, इसीलिए हम फेल होते हैं, तो कुछ ना कुछ इशू होगा. सो जस्ट बी काम एंड डोंट टेक फेलियर्स एज, यू नो, कि ये हार है या ये तो दुनिया ख़त्म हो गई. नो, जस्ट थिंक कि कुछ गलती हुई है तो उसको देखते हैं, फिर से करते हैं, एंड वील डू इट अगेन एंड वील अचीव दैट गोल. जो कितनी भी बार हो, नो, वी हैव सच ग्रेट पीपल. इतने बड़े बड़े लोगों का हमने नाम सुना है जिन्होंने कितने फेलियर्स देखे हैं. अब यू नो, दे आर लाइक सबसे हाईएस्ट पीक पे है अपने करियर के. उनका नाम हम लेते हैं एज द एपिटमी ऑफ सक्सेस. कोई भी आप सेलिब्रिटी लीजिए या बिजनेस पर्सन लीजिए या यू नो स्पिरिचुअल पर्सन लीजिए, एवरीबडी इज़ वर्किंग रियली हार्ड. दे आर एक्सपीरियंसिंग फेलियर्स, रिजेक्शंस बहुत बुरी तरीके से, बट द ओनली ट्रस्ट दे हैव इज़ इन देयरसेल्व्स. यू नो, उनको अपने ऊपर इतना भरोसा है. हमें, मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, फॉर स्टूडेंट्स स्पेशली, यू नो, जब स्टूडेंट्स कहते हैं लक क्या है, सो यू नो दीज आर द थिंग्स, जब हम उन पे भरोसा तब रखते हैं जब हमें खुद पे भरोसा नहीं है. तो जब आपको खुद पे भरोसा होगा तो ये फेलियर्स और रिजेक्शंस मैटर नहीं करेंगे, बिकॉज यू विल बी लाइक, यू नो मैटर व्हाट हुआ तो नेक्स्ट टाइम करेंगे यार, इस बार नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे. आई एम गोना वर्क हार्ड बिकॉज आई कैन डू दिस, यू नो, आई कैन बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ. सो इट्स रियली नेसेसरी. फैज़न खान जी, अच्छुतम, ओके, या इट्स वेरी नेसेसरी कि आप बीच बीच में फिर भगवान का नाम भी लेते रहे. यू नो, भगवान के भजन, मैं अपना अगर बताती हूँ, द बेस्ट स्ट्रेस बस्टर फॉर मी इज भजन्स. यू नो, व्हेन आई लिसन दीज भजन्स, I feel so much better. I am at peace. I feel happy. You know, when I'm happy, I dance on those bhajans. You must have seen my kathas. You know, I am dancing on my bhajans. It's because, you know, dancing is a way to show happiness. So I think, okay. अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्. अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्. कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं. So I think thank you. Yeah, I just, मैंने अभी गाया. सी, अब देखिए थोड़े इश्यूज तो है, यू नो, एवरीबडीज. मैंने इतनी डिफ़िकल्टी से अपना प्रीवियस सेमेस्टर निकाला है, पढ़ाई. भगवान पास करा दे मुझे. ओह, देखिए भगवान ऐसे पास नहीं कराते. ऐसा होता ना तो यू नो मुझे कोई चिंता ही नहीं होती, क्योंकि आई वॉज डूइंग ऑल दीज कथाज ऑल द टाइम एंड आई वुड हैव टोल्ड गॉड दैट भगवान मैं कथा कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे पास करा दीजिए. ऐसा नहीं होता. यू हैव टू स्टडी वेरी हार्ड इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल, इफ़ यू वांट टू अचीव गुड मार्क्स. सो प्लीज़ स्टडी, दैट्स वेरी नेसेसरी. भगवान आपको तब तक फल नहीं देते, क्योंकि भगवान ने, देखिए,
आई डोंट नो आपने किसकी बात सुनी है नहीं सुनी है, पर भगवान ने बहुत अच्छे से गीता जी में कहा है. गीता जी इस भगवान के वर्ड्स, लॉर्ड कृष्णाज वर्ड्स. उन्होंने साफ साफ कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो. मीन्स कर्म करोगे तभी फल मिलेगा, कर्म नहीं करने पर फल नहीं मिलेगा. अगर आप काम नहीं कर रहे हैं और आप सिर्फ भजन करेंगे और आप कहेंगे कि मैं पास हो जाऊं या मेरा काम हो जाए या मुझे सक्सेस मिल जाए, कुछ भी नहीं होना है. क्योंकि भगवान कहेंगे कि ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो मैं उनको फल ना देकर तुमको सिर्फ इसीलिए फल दूं क्योंकि तुम मेरी भक्ति कर रहे हो. दैट्स रॉन्ग. सो आई थिंक भगवान भी उसी की सहायता करते हैं, उसी की हेल्प करते हैं जो काम करते हैं. सो you just have to do your work with utmost honesty. अपना हार्ड वर्क और सब दीजिए एंड देन यू गोना अचीव हाइट्स. बहुत ज़रूरी है, पर रूटीन के साथ, प्लानिंग के साथ कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. सो आई थिंक दैट्स वेरी नेसेसरी. हार्ड वर्क इज सो नेसेसरी. हार्ड वर्क हर चीज़ को बीट कर सकता है. कहते हैं ना, हार्ड वर्क कैन बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड. सो यू जस्ट नीड टू बी वेरी हार्ड वर्किंग. सेशन ऑन 2 generations, नेक्स्ट टॉपिक. ओके, सो नेक्स्ट टाइम जब मैं लाइव आऊँगी, आई विल बी डूइंग अ सेशन ऑन 2 generations, like our parents' generation and our generation, because we have a lot of gap in this generation, which we call as generation gap. So I think I will be doing next topic for this only. Ma'am, we want to listen a few more minutes. Listen what? Is it necessary to worship God instead of feeling Him? You can do whatever you want. God is so nice. आप उनको जैसे भजना चाहते हो, आप वो वैसे भज सकते हो. I say this in my कथा. भगवान ने कहा है कि भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसी दस हूँ. इट मीन्स कि when you're प्रीचिंग गॉड, कि आप मन से करो, बिना मन से करो, आलस में करो, कैसे भी करो, बट इफ यू जस्ट बिलीविंग इन गॉड, यू गोना गेट द रिजल्ट्स. सो इट्स लाइक दैट्स नॉट नेसेसरी कि ये पूजा करने से ही होगा, वैसे करने से नहीं होगा, मंदिर जाकर ही होगा. यू कैन डू वेर एवर यू वॉन्ट, हाउ एवर यू वॉन्ट. इट्स जस्ट दैट आप उस ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं, कि सिर्फ अपना काम निकालने के लिए नहीं कर रहे हैं कि मेरा काम है तो मैं भगवान को मन, बिकॉज दैट्स व्हाट वी डू दीज डेज. नो, वी आर सो सेल्फिश कि हम भगवान को भी सिर्फ अपने काम के समय पुकारते हैं. हाउ कैन बी रिलेट हार्ड वर्क एंड स्पिरिचुअलिटी? जैसा मैंने कहा, सी स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट जस्ट वर्शिपिंग गॉड. स्पिरिचुअलिटी इज डूइंग योर वर्क विथ अटमोस्ट ऑनेस्टी, प्योरिटी एंड इन अ सिंपलर वे. दिस इज स्पिरिट. जैसा मैंने कहा, डॉक्टर्स डूइंग देयर वर्क, हेल्पिंग पीपल इज बीइंग स्पिरिचुअल. The inspectors, the police workers who are working for us, they are being spiritual. So it's just that when you're doing your work with utmost honesty, very happily, with pure feelings, and in a simpler way, just one work at a time, you're being spiritual. So I think that's more needed than just doing, क्योंकि सिर्फ आप पूजा करोगे और काम ढंग से नहीं करोगे. ऑनेस्टी, आई हैव सीन पीपल कि वो पूजा करते वक्त तो बड़े खुश हैं, एंड देन बाहर दुनिया में जाके दे आर डूइंग रॉन्ग थिंग्स एंड रॉन्ग डीड्स. सो दैट्स नॉट बीइंग स्पिरिचुअल. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ भगवान को वर्शिप करो एंड यू आर सेइंग आई एम स्पिरिचुअल. यू हैव टू बी स्पिरिचुअल व्हेन यू आर वर्किंग. स्पिरिचुअलिटी इज अ हैबिट. What's your quarantine task you having these days? My task is actually just 2 or 3 tasks. The first is studying. I am studying a lot these days, good books, so it's very necessary to study. Today's reader is tomorrow's leader. So you have to study, and I would say aap sabko bhi please do read, not necessarily for becoming a leader or something or a speaker or something, but reading really helps you. It जैसा एक क्वेश्चन आपने पूछा था, to attain peace, when you know some things, when knowledgeable, you really attain peace. So I think you should start reading some books. My first thing is reading books, a lot of books, reading good things, good stuffs, watching good stuffs. Second thing is exercising, because जैसा मैंने कहा, you have to be more fitter and stronger physically, emotionally and mentally. So I am working out a lot these days. And the third thing is spending a lot of time with your family.
Everything is so uncertain these days. Just cherish these moments with your family, with your loved ones. Suggest us some good books. Okay, see, first good book is, I think, Geeta Ji. Geeta Ji is the best book. For me, the most motivational session happened till date is that Geeta thing, महाभारत में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी. And the best motivational speaker is Lord Krishna. I think उनसे ज़्यादा अच्छे motivational speaker और कोई नहीं है. And उसके अलावा right now I am reading this Overcoming Worry and Stress. So I think you can read that book. It's really good. They have these points कि आप कैसे अपने, because right now the most worried thing is कि post COVID-19 हम कैसे लाइफ को चेंज कर सकते हैं या क्या चेंजेस हमारे लाइफ में आएंगे. तो आई थिंक उसकी वजह से वरी स्ट्रेस काफ़ी जनों को होता है. सो आई थिंक इट्स अ रियली गुड बुक फॉर एवरीबडी. इट्स ओवरकमिंग वरी एंड स्ट्रेस. एंड आई थिंक आई लाइक शिव खेरा's बुक जीत आपकी. These are good books. Do luck plays actually a role in our lives? See, luck, मैंने अपने एक सेशन में ये बात बोली थी, भगवान सबको सेम चीज़ देते हैं. लक इज़ लाइक जस्ट अज्यूम इट इज़ अ नंबर. लक इज़ 2. 2 नंबर है, सबको दिया गया है. मुझे 2 नंबर दिया गया है, आपको दिया गया है, आपके नेबर को दिया गया, आपके दोस्तों को दिया गया. एवरीबडी हैज़ दैट 2 नंबर फॉर लक. उसके बाद हार्डवर्क का एक नंबर उससे मल्टीप्लाई होता है. कि आप कितना हार्डवर्क करते हैं, उस इक्वल टू योर रिजल्ट. So I have this 2 of luck, you have this 2 of luck, everybody has that. I am working hard, मान लीजिए, if we are talking about numberings, I am working hard, मान लीजिए 2%, just 2. So 2 into 2 is 4, I will get that 4 result में. You are working hard, मान लीजिए 3, you will get 6. Somebody is working hard 4, they'll get 8. So it's like that. Luck सबके लिए एक है, but the main thing is hard work. आप जितना ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं. एंड देन यू आर लाइक ही वॉज लकी और आई वॉज लकी. नो, यू आर नॉट लकी. एवरीबडी इज लकी. इट्स जस्ट दैट द अदर पर्सन इज वर्किंग रियली हार्ड. सो हु इंस्पायर्स यू, मैम? Everybody inspires me. You just have to observe people. Everybody is doing some good things in their life. So I take inspirations from everybody. भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं गुरु या इंस्पिरेशन आप सबको बना सकते हैं. सब आपके गुरु हैं, क्योंकि सबसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. मे बी योर मम, योर डैड, योर सिस्टर, योर सिबलिंग, योर रिलेटिव्स, एवरीबडी इज लाइक दैट. तो आप सबसे कुछ अच्छी चीज़ें सीखिए, मोती ग्रहण करिए, बाकी चीज़ें हटा दीजिए. सो when did you realize that you want to become spiritual orator, motivational speaker? See, motivational speaker, I realized it just a year or 2 back, because I was already a speaker, spiritual orator, and I realized that other than spiritual things or dharmic things or dharmic kathaएं, people are really struggling with stress, relationship issues, family issues, anxiety issues. Everybody is dealing with these things. So I think it was very necessary to have different sessions other than religious things. So I thought of doing motivational talks and being a spiritual orator. I don't know. Yeah, I started when I was 7. Nobody thinks. I was too young to understand what I was doing, but whatever I was doing at that age, I was loving it, and धीरे धीरे it became my career, my work, and now this is the best thing I'm doing right now. So I think it's time to say bye. We're gonna have next sessions soon. If LPU invites me again, because I am so happy, I am so honored. I would really want to thank the student organization, society, management for learning. I think they are doing a great work, inviting speakers and doing these
मोटिवेशनल सेशंस, बिकॉज ये अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है व्हेन एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग विद दिस स्ट्रेस एंड ऑल. आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी. सो आई वुड वॉन्ट टू कम अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बिकॉज यू नो आज भी मैंने उनसे कहा था कि दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर मी डूइंग दीज लाइव सेशंस, because you know we have these kathas all the time. We don't use much live things. People who follow me, they know how, you know, rarely I come live. So I think it's something new for me. So I'm very happy for giving me this opportunity. LPU, thank you so much. One last bhajan please. Okay, hardest by. Oh okay ma'am, in person next time surely. You know, I am thinking of doing some counseling sessions personally, so I would let you guys know when I'm starting that, and we can have that one-to-one connection and one-to-one conversations. Ma'am, if you're not a spiritual writer, then what will you be? I think I will be a speaker. You know, my talent is expressing things. So whatever thing, so whatever career choices where you need expressing things, I think I could have done that. So I don't know. So okay, okay, so I would sing that last bhajan. And thank you Bhavna ji, happy to see you. We want to see you in LPU. I would love to come there, you know. I would love to interact with you guys personally, you know, have these personal conversations. And I would want to know what you guys think about life and general things, you know. Abhi everybody is asking about itna heavy things, stress and anxiety and career and all, but I really want to have this very casual conversations, you know, about life, about career and all. Harsh ji, thank you so much. I would say thank you. Please don't say thank you, please. Ruchika ji, I'll surely come there. Please invite me there to help you. Yes, okay. So I will sing this last bhajan and then I'll take a leave. जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफ़ी है, तेरा दीवाना बनने को नजर का वार काफ़ी है. Thank you so much, and hope to see you guys soon again, maybe through my live sessions or LPU live sessions. Naina ji, thank you so much for organizing this. You know, I really loved it and I'm so thankful and blessed to be here. Jyoti ji, thank you so much, you know. And I would like to thank every student out there in LPU. So thank you so much for inviting me here. How I love this session, you know, I can't describe in words. I know these things, you know, they motivate me actually. You know, I am here to motivate you guys. But आपकी बातें सुनकर मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना मोटिवेशन मिलता है. You know, I feel there's so much more to learn after listening to your questions. और कितना कुछ और मुझे भी जानना है, सीखना है. I'm always listening to you in Sydney, Australia. Thank you, Vijayata ji. Thank you so much. Okay, so I'll take a leave. Radhe Radhe. Thank you. Bye. Namaste. Thank you so much. Yes, see you soon everybody. Do take care guys, you know. Be happy. Enjoy this lockdown period. You're gonna miss this thing, you know. After some years, you'll be like, कितना अच्छा समय था यार वो. So, you know, सिर्फ याद करने में, रिग्रेट करने में इस समय को मत बिताइएगा. Just, you know, enjoy this moment. Cherish this moment. Treasure these memories. It's very important. Kritika ji, thank you so much for this amazing session. Thank you. Come soon. Yes, okay then. Bye. Thank you, Bhavika ji. Thank you, Vishwa ji. Thank you so much. Aprajita, I will visit LPU soon.
Akshay, thank you so much. You want to listen you more? I will do that. We'll come soon again. Okay, lovely. Take care, everybody. Bye. Radhe Radhe.